is actually an expression of our praise and worship to what God has done in our lives. और मैं बहुत सुन करके बहुत खुश हुआ कि गाना गाना व गीत गाना प्रभु के लिए, हाँ, प्रभु के लिए गीत गाना, प्रभु का जो आराधना करना, प्रभु का प्रशंसा करना है। In the last few days, particularly in these days, we were studying from the letter of Philippians written by Apostle Paul. और पिछले हमारा अध्ययन में फिलिपियों को लिखा गया पत्री, जो पौलुस के द्वारा लिखी हुई पत्री को हम लोग अध्ययन कर रहे थे। And as we studied, we could find that that particular letter was a letter of joy, where we find Apostle Paul repeating that word, rejoice, and we find him being joyful in spite of the circumstances he was in. और उस जब पत्री को हम लोग पढ़ रहे थे, वो पत्री एक ऐसा पत्री है जो आनंद और खुशियां मनाने की पत्री है, और प्रेरित पौलुस उस शब्द को, जो खुशियां मनाना व आनंद करना, जो शब्द को बहुत बार वो इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद भी खुशी रहने के लिए सभी विश्वासियों को वो प्रोत्साहन दे रहे थे। The other word that was, or phrase that was quite often repeated in Philippians, we could observe, was the phrase "in the Lord," which sort of reminds us that true joy, or we can truly rejoice when we are in the Lord. और हम लोगों ने एक और शब्द को अध्ययन किया था, वो हमें इस बात को याद दिलाता है कि प्रभु में का मतलब क्या है, कि प्रभु में हमें सब कुछ आनंद, खुशी, सब कुछ मिलता है। इस बात को भी हम लोग, इस पद को भी बहुत बार हम लोग पढ़ा था। The opposite of that is to, rejoice in the circumstances or feelings. And we find if we rejoice in them, they keep changing, they keep fluctuating. और हम लोग आनंदित होना व खुश होना और प्रभु में, इसका जो विपरीत शब्द को हम लोग यदि देखें, तो इस बात को हम लोग देख रहे थे कि जो शब्द है उसको बार-बार परिवर्तन होने वाली बातों को हम लोग समझ सकते हैं। That is why we find Apostle Paul, in spite of being in a very difficult circumstances, he was in the Roman prison, but still we find him rejoicing in the Lord. He is happy that the gospel is advancing in the place where he is. और बहुत सारे कठिनाइयों का परिस्थिति होने के बावजूद, वो रोमी लोगों का जेल के अंदर होने के बावजूद भी, वो फिर भी परमेश्वर में व प्रभु में वो बहुत ही खुश थे, आनंदित थे। And through this letter, when Apostle Paul is writing this, he's also radiating, or sharing this joy, and he's also encouraging the Philippian believers to grow in faith and to have this joy in their life. और हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस फिलिपियों का कलीसिया को वो सभी लोगों को प्रोत्साहन देते हैं कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह में खुश रहे और आनंदित रहे। So the main thing that we can learn, from the Philippian letter is we can rejoice in the Lord as believers. और जैसे कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो फिलिपियों का पत्री से हम लोग सीख सकते हैं, वो है हम जो विश्वासी होने के नाते हम हर समय खुश रहने वाली बात को उस कलीसिया से सीख सकते हैं। Whatever circumstances we are going through in this world, it could be good, it could be bad, but we can always rejoice when we put our trust in the Lord. और कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, या फिर अच्छा दुख, या फिर अच्छी, या फिर कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह में हमारा भरोसा हम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ प्रभु में हम आनंदित रह सकते हैं। Now, as we move to this new letter, Colossians, as we continue to study this letter for the next few days, we will find the main theme here Apostle Paul is now trying to convey to the Colossian churches as believers, we are complete in Christ. और हम लोग देखते हैं, जब एक नया पत्री को आज हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है कुलुसियों का पत्री। उस कुलुसियों का पत्री में हम लोग ये समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हम परिपूर्ण हैं,
प्रभु यीशु मसीह में संपूर्ण है। In the letter of Philippians, we saw we as believers can rejoice in Christ. और फिलिपियों का पत्र में हम लोग देख रहे थे एक विश्वासी होने के नाते प्रभु यीशु मसीह में हम आनंदित रह सकते हैं। And over here in the Colossian letter, as we're going to study, you will find how Apostle Paul is making arguments and trying to encourage the Colossian church that they are complete. We are complete as believers in Christ. और अभी जब हम कोलोसियों का पत्री में आते हैं तो एक ही एक आर्ग्यूमेंट को वो लेकर के आते हैं, वो एक तर्क को ले आते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम जो विश्वासी हैं, हम संपूर्ण है व परिपूर्ण है, इस बात को वो लेकर के आते हैं। Now, how do we know that Apostle Paul has written this letter? In verse 1, और yeah. हम लोगों को कैसा पता है कि इस पत्री को प्रेरित पौलुस ने लिखा है? In verse 1, it clearly says Apostle Paul, an apostle of Christ Jesus. He's introducing himself, and also towards the end of the letter, we find Apostle Paul himself taking the pen and writing his own name. और हम लोग देखते हैं कि पहला पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस ये कहते हैं, पौलुस की ओर से परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और वो अपना खुद जो पेन लेकर के वो अपने हाथों से ही इस पत्री को वो लिखते हैं। Yeah, in chapter 4, verse 18, he's writing this greeting with his own hand, and he's also mentioning this word, remember my chains. और हम लोग देखते हैं कि चौथा अध्याय और 18 वचन में प्रेरित पौलुस ऐसा कहते हैं कि अपना खुद के हाथों से वो इस पत्री को लिखते हैं और इस बात को कहते हैं कि मैं जो बंधुआई में हूँ मुझे स्मरण रखना, व जंजीरों में हूँ मुझे स्मरण रखना, इस बात को वहां पर वो लिखते हैं। So we can clearly know it was Apostle Paul who wrote it. And the other thing that we can that we know about the circumstances of Apostle Paul was he was in prison during that time. और इस बात को हम सही रीति से समझ सकते हैं कि इस पत्री को प्रेरित पौलुस ने लिखा था अपने हाथों से, और उसके साथ साथ जब वो लिख रहे थे वहां का जो संदर्भ, जो परिस्थिति में थे, वो है जंजीरों में व जो जेल में वो कैद थे। So we and Bible scholars and most of them conclude the fact that this was written, at almost the same time when he wrote the letter to the Philippian church, which was AD 62. और बहुत सारे ऐसे बाइबल जो वैज्ञानिक बाइबल के ज्ञान रखने वाले लोग इस बात को मानते हैं और प्रमाण करते हैं कि ये जो पत्री है, फिलिपियों का पत्री जो 62 ईस्वी में लिखी गई थी, उसी समय ही ये जो कोलोसियों का पत्री भी लिखी हुई थी। Now, if you have read the book of Acts that was written by Luke, you will find that this place, Colossae, is nowhere mentioned in the book of Acts. और यदि आप प्रेरितों के काम जो इतिहास का पुस्तक है, उस पुस्तक को यदि आप अध्ययन करेंगे तो वहां पर कोलोसियों का जो कलीसिया है उसके विषय में कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। Now, just to give you a background of this place, we saw Philippi was in the European side of the world. और इस पत्री का जो पृष्ठभूमि में देना चाहता हूं, जो फिलिपियों का पत्री को फिलिपियों का जो कलीसिया थी उसको हम लोगों ने देखा था, वो यूरोप का प्रांत में था। And this place, Colossae, was found in the Asian part of the world. और ये जो कोलोसी का जो कलीसिया थी व कोलोसी का जो जगह थी वो एशिया के प्रांत में था। And Asia Minor was the place where Apostle Paul spent a lot of time. But in spite of that, in the book of Acts, we do not find Apostle Paul going to this place, Colossae.
और हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस अपना ज्यादातर का जो समय था, वो समय एशिया प्रांत में ही अपना समय को ज्यादा गुजारा था। लेकिन हम कहीं पर भी इस बात को नहीं पढ़ते कि प्रेरित पौलुस कोलोसिया के कलीसिया में वो गए थे। So one thing we can be sure of is, it was not Apostle Paul who started this church. और एक बात हम लोग साबित कर सकते हैं, एक बात हम जो है इसके लिए सही पाए जाएंगे कि प्रेरित पौलुस ने इस कलीसिया को स्थापना नहीं किया था। Because in chapter 1, verse 7, he says, the gospel, the word of truth, you heard it from Epaphras, your beloved servant. और हम लोग देखते हैं पहला अध्याय उसका 11वां वचन में, तो जो एपाफ्रोडिटस जो भाई थे, उनके जरिए तुम लोगों ने परमेश्वर की वचन को तुमने सुना है। And then also in chapter 4, verse 12, again, Apostle Paul, as he's concluding, he says, Epaphras, who is one of your servants, is continuously struggling for you in prayers. और हम लोग चौथा अध्याय 12 वचन में भी हम लोग जब पढ़ेंगे, तो इपफ्रस जो है आप लोगों के लिए बहुत ही प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना के लिए वो हर समय जो है प्रयत्न कर रहे हैं। इस बात को भी हम लोग वहां पर पढ़ सकते हैं। So based on those two verses, we can safely conclude that this church, the Colossae church, would have been formed by this person, Epaphras. और हम लोग देखते हैं कि जो मान सकते हैं इन दोनों वचनों के जरिए कि ये जो कलीसिया स्थापना एपफ्रस के द्वारा ही हुई थी। Now, the other question that will come in our mind is, how did Epaphras come to know about this gospel? और एक और सवाल हमारे मन में उठता है कि एपफ्रस को सुसमाचार किसने सुनाया, और कहां से वो परमेश्वर का वचन को उसने सुना था। Now, when we read the book of Acts, we find Apostle Paul spent a lot of time in this place called Ephesus. और यदि प्रेरितों के काम को अध्ययन करेंगे, तो हमें यह समझ में आता है बहुत ही ज्यादा समय प्रेरित पौलुस एफिसियों में अपना समय को गुजारा था। Yeah, in Acts chapter 19, verses 8 and 10, we find Apostle Paul spent, in that particular verses, it says he spent around 3 months and 2 years in that place. और हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम यदि 19वां अध्याय को आप जब पढ़ेंगे, तो आपको हमें यह समझ में आएगा कि प्रेरित पौलुस जो है एक बार जो है करीबन 3 महीना वहां पर अपना समय को गुजारा था, और 2 साल भी और अपना समय को जो है एफिसियों में गुजारा था। And in Acts chapter 20, when he's talking to the Ephesian elders, he says, I labored with you for 3 years in that place, Ephesus. और जो 20वां अध्याय को और हम लोग आएंगे, तो प्रेरित पौलुस इस बात को वहां के जो प्राचीन लोग हैं उन प्राचीनों को कहते हैं, मैं अपना समय जो करीबन 3 साल जो है मैंने एफिसियों में मेहनत किया हूं। So we can find Apostle Paul had spent a lot of time in Ephesus. And so when you take the map and when you look at, where Ephesus is, you will find that it is very close to this place, Colossae. और यदि आप जो नक्शा को उठा करके देखेंगे और जो एफिसियों का जगह को आप लोग देखेंगे, उसके बाद कोलोसी को देखेंगे, तो कोलोसी और एफिसियों व एफिसी जो दोनों पास पास में हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस बहुत ही ज्यादा समय उन्होंने गुजारा था। And so what, the Bible scholars assume or they try to guess is that maybe Epaphras was in Ephesus and he would have been converted by Apostle Paul and studied the gospel with Apostle Paul in Ephesus. और हम लोग देखते हैं कि जो बाइबल विज्ञान का जो लोग है, जानने वाले मानने वाले लोग जो हैं, वो लोग ये मानते हैं कि एपफ्रस जो है एफिसियों में अपना समय बिताया होगा, परमेश्वर का वचन को उसने सुना होगा प्रेरित पौलुस के जरिए, और फिर बाद में जाकर के कलीसिया स्थापना किया होगा। Yeah.
So after having heard the gospel in Ephesus, Epaphras was faithful to the message that he had received. He had that eagerness to share it among his community, and so he would have traveled back to Colossae and must have established this church over there. और हम लोग समझते हैं कि एपैफ्रस जो है परमेश्वर का वचन के प्रति बहुत विश्वास योग्य रहे और वो विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर का वचन को सुन करके वो इफिसियों से वो कुलुस्सी में यात्रा करके परमेश्वर का वचन को अपने ही लोगों के बीच में उन्होंने बांटा होगा। Also in Colossians chapter 2, verse 1, Apostle Paul says, as he's addressing the readers, he says, I have not met you all face to face. और यदि दूसरा अध्याय कुलुस्सियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय पहला वचन यदि हम लोग पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं, मैं आज तक आमने सामने आप लोगों को नहीं मिला हूं। And I think that speaks a lot about Paul's heart. In spite of, not founding that church, or in spite of not knowing those people over there, he was still, very much considered, or he had that that care, eldership care, or that leadership care for that church whom he never met. और हम लोग देखते हैं प्रेरित पौलुस का जीवन में जो भले ही वो उन लोगों के साथ शारीरिक तौर पर आमने सामने मुखानुमुख जो है मिले भी नहीं थे, फिर भी उनको जो है इस कुलुस्सियों का कलीसिया के प्रति बहुत एक जिम्मेदारी थी, बहुत एक कर्तव्य था और एक लीडर होने के नाते, एक अगुवे होने के नाते, एक प्राचीन होने के नाते वो इस जिम्मेदारियों को वो निभा रहे थे। Yeah, the exact word I was trying to search is Paul had that pastoral responsibility to pastor those people whom he never met, but he knew that they all belonged to the same family. और हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस का जो सेवा करने की जो सोच है, एक सेवक जो एक पास्टर है, बस सेवक है, प्राचीन है, वो सोच जो है प्रेरित पौलुस के जीवन में था और इसीलिए कुलुस्सियों का पत्री वो लिखते हैं। This is an attitude that even we as New Testament believers must have, as God has put us all in different places. We must still, be concerned about the bigger part of the church, the universal part of the church. और हम जो नया नियम के जो सदस्य हैं, नया नियम के जो विश्वासी हैं, हमारे जीवन में भी ऐसे ही एक जिम्मेदारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जो स्थानीय कलीसिया का तो सदस्य है ही, उसके साथ साथ जो सार्वभौमिक कलीसिया है, अदृश्य कलीसिया है, उस कलीसिया का भी एक हम सदस्य हैं। वैसे ही कलीसियाओं के प्रति हमारा जिम्मेदारी होना बहुत आवश्यक है। And so we find Apostle Paul, in spite of not knowing them, he writes a letter. He wants to encourage them. In chapter 1, we see he's praying for them. Once he came to know about them, he was praying to them. And we see that close relationship that Apostle Paul wanted to have with this church whom he has never met. और देखते हैं जो प्रेरित पौलुस जो है, भले ही वो उन लोगों को आमने सामने मिले नहीं है, फिर भी एक जिम्मेदारी थी, एक ध्यान, उनका ध्यान जो है इस कलीसिया के प्रति थी और इसीलिए उनका प्रेम के कारण वो इस कलीसिया को एक पत्री लिखते हैं। Now, the reason why, you might ask the question, why is Apostle Paul writing this letter in the first place? और हम लोग देखते हैं जो पहला बात आप लोगों का मन में एक ख्याल आ सकता है, एक सवाल उठ सकता है, वो सवाल है प्रेरित पौलुस इस पत्री को क्यों लिखते हैं? We find that Epaphras, after having established this church, there were some problems that was now happening in that area which Epaphras couldn't handle. और हम लोग देखते हैं कि ये जो कलीसिया एपफ्रस के जरिए जो स्थापित हुई थी, वो कलीसिया में बहुत सारे समस्या भी उत्पन्न हुई। उन समस्याओं का समाधान एपफ्रस के जरिए नहीं हो पाई। And so what he did, Epaphras traveled to Rome to meet Apostle Paul, and he wanted to share all the things that's happening in the church and seek Paul's advice on it. और इसीलिए एपफ्रस ने क्या किया है, ना वो सीधा कुलुस्सियों से
जो जगह है वहां से रोम की ओर उसने यात्रा किया और प्रेरित पौलुस जो बंदी गृह में थे, ऐसे समय में जा करके यहाँ की समस्याओं को उसने बताया। Because in chapter 1, verse 4, Apostle Paul says, when we heard of your faith that Epaphras had communicated to you, we get to understand that Epaphras was the one who came to Apostle Paul in Rome and shared about these problems that was happening in the church. और हम लोग पहला अध्याय चौथा वचन को यदि हम लोग देखेंगे तो प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास के विषय में मैंने सुना है। और उसका मतलब यह है कि एपफ्रस जो है इस कलीसिया को परमेश्वर का वचन सुनाया था। As a church, they were doing really well, but there was a real danger of a lot of false teachings that was slowly could have, or in the future could have creeped into the church. और हम लोग देखते हैं कि वो कलीसिया की ओर से देखा जाए तो एक अच्छी कलीसिया थी और अच्छी कलीसिया के रूप में काम कर रही थी, लेकिन उस कलीसिया में बहुत सारे ऐसे गलत शिक्षाएं फैल रहा था और वो उस कलीसिया को जो गलत शिक्षा के कारण जो है गलत शिक्षा के वजह से उस कलीसिया नष्ट होने को था। इसीलिए And as we read this thing, we can find those false teaching. For example, in chapter 2, verse 8, Apostle Paul was warning them. He's saying, be careful that you do not be deceived by the philosophies that are found around you. और दूसरा अध्याय 8वां वचन में हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस इस बात के लिए चौकना व चौकस रहने के लिए कहते हैं, बहुत ध्यान रखना, चौकस रहना कि तुम भी जो तत्वज्ञान है व ज्ञानवादी लोग हैं, वो ज्ञानवादी लोग आकर के तुमको ना भरमाएं। They were living in a place where people gave much importance to some deep knowledge or some deep spiritual knowledge which was attacking the simplicity of the gospel. और वो लोग ऐसे जगह में वो लोग रह रहे थे जहां पर लोग जो है अपना तत्व ज्ञान को ला करके वो जो के आमतौर पर जो कलिसिया थी वो एक समांतर का जीवन न कलिसिया जी रही थी, उस कलिसिया को अपना ज्ञानवाद व तत्ववाद में वो लोग नष्ट करने के कगार में थे। And in the same verse, we also find, there were people who were giving more importance to the element spirits of this world, or the unseen, the spirits of the unseen world. और हम लोग देखते हैं इस वचन के वचन में भी कि लोग जो है जो अदृश्य आत्मा है बा जो अपना परंपरागत जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को बहुत ही ज्यादा वे लोग ध्यान देते थे। For example, in chapter 2, verse 18, he speaks about the worship of angels. And so we see another type of teaching where people were stressing on following beings or supernatural beings that could not be seen. और हम लोग देखते हैं कि दूसरा अध्याय 18 वचन में लोग क्या कर रहे थे ना, उन स्वर्गदूतों का पूजा कर रहे थे, स्वर्गदूतों की आराधना कर रहे थे, जो स्वर्गदूतों की हमारे आंखों में व आंखों से दिखाई नहीं देती। ऐसे आत्मिक संसार का जो देवताएं हैं उन देवताओं का भी पूजा कर रहे थे। They were living in a community where people used to invoke, the evil spirits seeking for help and protection. और वे लोग ऐसे समय में अपना समय को गुजार रहे थे। वो समय क्या था ना, अपने मदद के लिए लोग जो है जो दुष्ट आत्माएं हैं व आत्माएं हैं ऐसे आत्माओं के ऊपर भरोसा रखते थे। Even especially as Indians, we understand it much better when we look at Hinduism. We find how they invoke the evil spirits, and that was something that was also found in Colossae, where they were worshipping the angels and invoking the evil spirits to help and protect them.
और हम जो भारतीय होने के नाते हम इस बात को बहुत गहराई से समझ सकते हैं कि जो लोग क्या करते हैं ना, अपनी मदद के लिए दुष्ट आत्माओं के ऊपर वे भरोसा करते हैं। Then in verse 21, we find Apostle, another type of teaching which Apostle Paul is trying to. ब्रदर, Yes, एक्सक्यूज मी ब्रदर, yes, yeah, जस्ट अ मिनट। yeah, yeah, yeah. Okay. Carry on, brother. Carry on. Brother Roy, continue. Brother Roy, Yes, please continue. Yeah. ओके, वॉइस वाज नॉट क्लियर, दैट आई वाज चेंजिंग द नेटवर्क। okay, okay. Now you can hear me, no? It's clear. कंटिन्यू। Okay, yeah, and then in verse, so the first thing we saw was the danger of philosophy that was creeping into the church. और पहली बात को हम लोगों ने अध्ययन किया कि जो दार्शनिक शास्त्री है व दार्शनिक तत्व है, वो उस कलीसिया की ओर जो है आ रहा था, आगे बढ़ रहा था। The second danger was, the worship of angels and the elements or the spirits of this world. और दूसरा बहुत खतरा जो है उस कलीसिया की ओर आ रहा था, वो खतरा ये थी कि जो स्वर्गदूतों को वे पूजा कर रहे थे। And the third danger was, we can find in chapter 2 verse 16, where we see Apostle Paul warning them about the legalistic Judaism that was creeping into the church. और हम लोग जो है तीसरी बहुत बड़ी खतरा जो है उस कलीसिया की ओर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहां पर जो है पर्व व जो त्योहार वगैरह है, उन पर्व और त्योहार को मनाने की जो परंपरा है, वहां वो घुसते हुए उस कलीसिया में आ रहा था। There we find, the Judaizers were again coming and trying to stress importance on food, on the dietary regulations as per the Mosaic law. और वहां पर हम लोग इस बात को भी पढ़ सकते हैं कि वो जो खाने और पीना है, तो वो जो मूसा के व्यवस्था के अनुसार वे लोग कर रहे थे। They were stressing on the importance of keeping the religious, the new moon festival and all that. और वे लोग क्या कर रहे थे कि जो नया चांद निकलता था उसके लिए वो लोग त्योहार मनाते थे, पर्व मनाते थे, उसके लिए भी प्रेरित पौलुस जो है उस खतरा को वो लोग सुधार रहे हैं। And so that's why in Apostle Paul in verse 17 is saying that these things are only a shadow. We have the Christ, Lord Jesus Christ is the substance of all these things. और हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ जो आप मना रहे हैं, ये एक हमारे लिए एक छाया के समान है, लेकिन ये सब कुछ जो है प्रभु यीशु मसीह में आने वाला समय में पूरा होगा। Now we must be very clear that Apostle Paul is not against the Mosaic law. और हम लोग एक बात को समझ सकते हैं कि प्रेरित पौलुस मूसा की व्यवस्था के खिलाफ नहीं थे। He was only against the wrong application of the Mosaic law. और वो प्रेरित पौलुस जो है खिलाफ होने का कारण यही था कि मूसा की व्यवस्था को गलत रीति से वे लोग अपना जीवन में व्यवहारिक जीवन में लागू कर रहे थे, इसके लिए वो खिलाफ थे। He was against them, trying to teach the fact that for salvation or for spiritual maturity, they needed to add the Mosaic law to it. That was what Paul was against them. और वो इस बात के लिए वो खिलाफ इसीलिए थे कि अपना जो आत्मिक भोजन अथवा जो अपना आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए मूसा का व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, इस बात के लिए वो खिलाफ थे। So when Epaphras was telling to Paul about all these problems that are creeping into the church, Apostle Paul is writing this letter and trying to tell them that as believers, we are complete in Christ. और
जब एपफ्रस जो है इन सब समस्याओं को लेकर के जब प्रेरित पौलुस के पास जाते हैं, तब प्रेरित पौलुस इन लोगों को कोलोसियों का कलीसिया को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हम प्रभु यीशु में परिपूर्ण हैं, बस संपूर्ण हैं। So the first purpose we find why Apostle Paul is writing this letter, we can read Colossians chapter 1 verse 18. और पहले कारण जो है प्रेरित पौलुस क्यों इस पत्री को लिखते हैं, वो है पहला अध्याय और 18वां वचन में हम लोग इस बात को देख सकते हैं। So can you please read 18? और आइए हम लोग पहला अध्याय 18 वचन को पढ़ लें। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। It shows the supremacy of Christ, and that is what Apostle Paul wants to do through this letter. He wants to show how Jesus Christ is supreme. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि इस जो वचन से प्रभु यीशु मसीह ही सबसे ऊंचे हैं, सबसे जो सुप्रीम है अथवा बहुत महान है। प्रभु यीशु मसीह सभी चीजों से महान है, इस बात को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। Or in other words, he's trying to convince the Colossian readers, and especially New Testament believers, that we do not need anything extra, or we do not need anything additional, because Christ is supreme. He can make us complete. We are complete in Christ. और हम लोग देखते हैं कि जो है हम लोगों को और कोई एडिशन नहीं चाहिए, और कुछ बाहिक रीति से हम लोगों को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संपूर्ण है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए महान है और ऊंचे स्थान पर है। He stresses that point throughout the epistle, especially, again in, for an example, chapter 2, verse 9, he says, in Christ, the whole deity is found in him. और हम लोग देखते हैं कि दूसरा अध्याय 9वां वचन में एक और बार इस बात को वो साबित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्णता है, संपूर्णता है, इस बात को वो बताते हैं। So the first purpose why Apostle Paul is writing this letter is to show that Christ is supreme, that he is the complete deity, that he is God. और पहला जो कारण को हम लोग देख सकते हैं प्रेरित पौलुस क्यों इस पत्री को लिखते हैं, वो कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है और संपूर्ण परमेश्वर है, इस बात को वो बताते हैं। The second reason why he is writing this epistle we can find in Colossians chapter 1 verse 28, and there we find the desire of Apostle Paul where he says, I want to present you all mature in Christ. और जो दूसरी कारण क्यों प्रेरित पौलुस जो है इस कलीसिया को पत्र लिखते हैं, वो है मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामने एक सिद्ध और जो है संपूर्ण तरीके से सिद्ध बना करके मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने उपस्थित करूं। Apostle Paul just did not want them to be saved and then leave it off there. That was not the desire of Paul. Apostle Paul wanted to go further. He wanted to disciple them, and at the coming of the Lord, he wanted them to be matured in Christ. और प्रेरित पौलुस जो है जो उद्धार पाए हुए लोगों को ऐसे ही उद्धार पाया और छोड़ दिया, ऐसा वो रखना नहीं चाहते थे। उन लोगों को जो शिष्यत्व कैसा होता है, परमेश्वर का वचन को कैसे शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा को जो है प्रेरित पौलुस उन लोगों को देना चाह रहे थे। As New Testament believers, when we share the gospel, that must also be an attitude that we follow, not just to tell the gospel and leave, but to also care to disciple them, to help them mature in Christ. और हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारे जीवन के लिए भी एक सीख है, जो सुसमाचार सुना करके छोड़ देना ऐसा नहीं है, बल्कि सुसमाचार सुना करके उन लोगों को ध्यान देना है, उनका परवरिश करना बहुत आवश्यक है। And then finally, in the last chapter, we find the third reason why Apostle Paul is writing
this letter is to tell them about his current circumstance, and so that the Colossian church might pray for him. और जो आखिरी अध्याय में हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस क्यों इस पत्री को लिखते हैं। वो अपना जो वर्तमान की परिस्थिति किस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति को वो बताना चाह रहे थे, ताकि उस कलीसिया जो है उनके लिए प्रार्थना करें। So you can have these three themes in mind. So as we read the Colossian letter, you will be able to understand it much better. और ये तीन बातों को अपना मन में रखना बहुत आवश्यक है। इन तीन बातों को यदि हम अपने मन में रख करके इस पुस्तक को इस पत्री को हम लोग पढ़ेंगे, तो इस पत्री हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। The first reason we saw that he wants to communicate the supremacy of Christ. और पहला कारण हम लोगों ने देखा कि वो पहली बात इस बात को बताना चाह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ही अति महान परमेश्वर है, इस बात को वो साबित करना चाह रहे थे। Secondly, his desire to present the Colossian church or the New Testament believers mature in Christ. और दूसरी कारण को हम लोग समझ सकते हैं कि वो कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के सामने वो क्या करना चाह रहे थे, न संपूर्णता व परिपूर्ण सिद्ध हो करके उनको जो है परमेश्वर के सामने प्रस्तावना देना चाह रहे थे। And thirdly, Paul, in spite of being an apostle, the reason he is writing is that he looks forward to the prayers of the Colossian believers. और तीसरे कारण जो कोलोसियों का पत्री को लिखने का कारण यही है कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए वो कैद थे, उस कैदी को दूसरों के सामने वो बताना चाह रहे थे ताकि वे लोग उनके लिए प्रार्थना करें। Apostle Paul really wanted the believers to know that in Christ they are complete, that they do not need to go after anything that this world is providing them. और प्रेरित पौलुस इस बात को बताना चाह रहे थे कि इस संसार में जो कुछ भी आपको मिलता है, बस संसार आपको देता है, उसके पीछे मत भागो, इस बात को वो कहना चाह रहे थे। And so, as I was reading this whole letter, I could find how Apostle Paul was trying to encourage the believers to grow in all four directions. और जब मैं इस पत्री को अध्ययन कर रहा था, तब मुझे जो है ये समझ में आई कि प्रेरित पौलुस कैसे चार दिशाओं में यात्रा करने के लिए वो इस पत्री में उन लोगों को कह रहे हैं। In chapter 1 verse 23, Apostle Paul was asking the believers to grow downward. और हम लोग देखते हैं कि पहला अध्याय 23वां वचन में प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं, 23वां वचन में, कि वे लोग नीचे के ओर बढ़ते जाएं। Can we read verse 23, brother? Chapter 1 verse 23. आइए हम लोग 23वां वचन को पढ़ लें। यदि तुम विश्वास के नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिससे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया है और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। Yeah, you can find that word to be stable, to be steadfast, to be deeply rooted in Christ. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में कैसे एक दृढ़ बने रहने की बात को हम लोग देख सकते हैं। He did not want them to shift. He did not want them to be unstable. He wanted them to grow deeply downward. और हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस क्या चाह रहे थे, कैसे वो लोग विश्वास में मजबूत होकर के स्थिर बने रहने के लिए वो ये नहीं चाह रहे थे कि वो डगमगाए या फिर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो, लेकिन वो चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में वो दृढ़ रहे। Then in chapter 2 verse 6 we find Apostle Paul is now encouraging the believers to grow upward. He says, be rooted and built up. और प्रेरित पौलुस जो है इस बात को वो कहना चाह रहे थे कि वो लोग ऐसे मजबूत रहे, ऐसे बने रहे, और वहां पर इस बात को देखते हैं कि वो लोग ऊपर की ओर बढ़े। Is that word there, brother, in chapter 2 verse 7, being rooted and built up in Christ?
चलते रहें। यस, मैं आई विल रीड इट। सो Yeah. जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। Apostle Paul has this picture of a building in mind. He says, you not only must be rooted strongly in Christ, you must also start building up in Christ. और तुम लोग जो है दृढ़ बने रहना, बा नींव जैसा ओके स्थिर रहना, टिके रहना, उतना ही नहीं, बल्कि प्रेरित पौलुस इस बात को कहना चाह रहे थे कि वो लोग जैसे कि एक बिल्डिंग को हम लोग बनाते हैं, घर को जैसे जोड़ जोड़ करके बनाते हैं, वैसे ही बढ़ाना है, इस बात को वो कहना चाह रहे थे। So firstly, we saw there is a downward growth, and then secondly, और an upward growth. Yeah. और पहली बात हम लोगों ने देखा था कि वो नीचे की ओर मजबूत होकर के बढ़े। दूसरी बात, वो ऊपर की ओर आगे बढ़ते जाएं। And thirdly, we find the inward growth. We find Apostle Paul in chapter 3, verse 3. He says, your life is hid in Christ. और तीसरी बात को हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारा जो जीवन है वो छिपा हुआ है, इस बात को हम लोग देख सकते हैं। He sort of gives a security to the believers or to the readers that your life is hid, it is inside Christ. और हम लोग देखते हैं कि तुम्हारा जीवन जो है क्या है ना, प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में छिपा हुआ है। वो क्या दर्शाता है ना, अंदरूनी एक बढ़ोतरी को दर्शाता है। We can find an inward growth that Apostle Paul is trying to communicate. और हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो एक अंदरूनी तरीके से बढ़ोतरी के विषय में प्रेरित पौलुस बताते हैं। And then in chapter 4, verse 5, we see an outward growth that we as New Testament believers must have. और चौथा अध्याय 5वां वचन में हम लोग देख सकते हैं एक बाहिक तरीके से एक विश्वासी का बढ़ोतरी होना चाहिए। Chapter 4, verse 5, he says, when you are walking outside, you need to walk in wisdom, making the best use of time. और वो इस बात को कहते हैं, जब तुम संसार में चलते हो तो उस समय का बहुत ध्यान पूर्वक इस्तेमाल करना और बाहर के और बुद्धिमान के साथ तुम बढ़ते जाना। So when Apostle Paul is saying we are complete in Christ, we can see we are complete in all the four directions. और प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम संपूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं, और जब परिपूर्ण है तो चार दिशाओं में हमें आगे बढ़ना है। As a believer, downward, we need to be rooted, standing steadfast in Christ. और जैसे कि हम विश्वासी है, नीचे की ओर बढ़ते जाना, उसका मतलब हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह में बहुत स्थिरता के रूप में हमें दृढ़ होकर के, स्थिर होकर के टिके रहना। And not only going downward, but also, as we read in chapter 2, we need to be building up in Christ. और हम देख रहे थे कि दूसरा अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन में हम उतना में ही टिके नहीं रहना है, बल्कि ऊपर की ओर जो है एक बिल्डिंग के समान हमें बढ़ते जाना है। Chapter 3, Apostle Paul reminds his readers that their life is hidden in Christ. We have a great security in Christ. और हम लोग देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह में जो है तुम्हारा जीवन छिपा हुआ है, वो तीसरा अध्याय 3रा वचन में हम लोग पढ़ सकते हैं। And then in chapter 4, as we walk outside in the world, we need to walk in wisdom. There is an outward growth that we as New Testament believers need to have. और हम जब विश्वासी हैं, एक नया नियम का जो विश्वासी हैं, हम भी बाहिक तरीके से कैसे हमें बढ़ते जाना है। That same phrase, Apostle Paul also repeats in chapter 3, verse 11. He says, Christ is all in all. You could be a Jew, you could be a Gentile, a circumcised or uncircumcised, but Christ is all in all. और हम लोग देखते हैं कि जो कोई यूनानी हो या यहूदी हो, खतना करने वाले लोग हो या फिर खतना रहित हो, प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ है और सब लोग जो है स्वतंत्र है। इस बात को हम लोग 3रा अध्याय 11 वचन में देख सकते हैं। And so as we read and as we're going to study this book of Colossians, you will find how Apostle Paul is presenting Christ as God. और हम लोग जब इस कलीसिया का जो पत्री है, इस पत्री को जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इस बात को इस कलीसिया में वो उपस्थित करते हैं।
that he is not only God, but he's also the creator of both the seen and the unseen world. और हम इस पत्री को जब पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ही नहीं बल्कि वो दृश्य और अदृश्य जितने सारे सब कुछ है, सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर है। He is also the savior of this world, and it is only through him that we can get reconciled to God. और प्रभु यीशु मसीह ही इस संसार के उद्धार करता है और प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो सकता है। And in connection to the church, he is the head of the church. He is the supreme leader. और मेरे प्यारो, यदि कलीसिया की ओर आप लोग देखेंगे तो वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह ही वो कलीसिया का सिर है और वो ही महान है। So as we're going to start studying this letter, I hope this introduction will help us understand the letter as we go now verse by verse. और जब हम लोग इस कलीसिया के बारे में इस पत्री को हम लोग अध्ययन करेंगे, जो पदानुपद हम लोग जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो ये जो पृष्ठभूमि शायद आप लोगों को जरूर मदद होगा। As believers, as we read this letter, we must always keep in mind that that Apostle Paul is trying to convey the supremacy of Christ, and so that must also be seen in our practical life. सो मेरे प्यारो, जैसे कि हम विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह महान है, संपूर्ण है, और प्रभु यीशु मसीह जो मुखिया है, हम जो विश्वासी हैं, हमारे जीवन में भी वही प्रभु यीशु मसीह को महानता के रूप में हमें ग्रहण करना है। We live in a world where there are a lot of distractions, and the world offers many other additions for us to succeed. But Apostle Peter is saying Christ is in Christ you are complete. Christ is sufficient. Downward, upward, inward and outward, Christ, we are complete in Christ. और हम लोग देखते हैं इस संसार में बहुत सारे जो वातावरण है, बहुत सारे विषय हैं, आपको जो है इस तरफ से खींचातानी वो लोग करेंगे, लेकिन प्रेरित पौलुस इस बात को इस कलीसिया में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में आप संपूर्ण हैं, प्रभु यीशु मसीह में जो है आप परिपूर्ण हैं, इस बात को वहां पर वो कहते हैं। So now can we read verses 1 and 2? आइए हम लोग पहला और दूसरा वचन को पढ़ लेते हैं। कोलोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय, पहला वचन और दूसरा वचन को पढ़ लें। कोई है पढ़ने के लिए? कितना सर? पहला अध्याय, पहला और दूसरा पद, कोलोसियों। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई थिमोथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। Yeah, here we see Apostle Paul introducing himself as an apostle. और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्रेरित पौलुस अपने आप को एक प्रेरित के रूप में प्रस्तावना करते हैं। If you remember, when he introduced himself to the Philippian church, he did not mention about apostleship. और हम लोग देखते हैं कि जब फिलिपियों का पत्री हम लोगों ने अध्ययन किया, वहां पर प्रेरित पौलुस अपने आप को मैं प्रेरित हूं करके इस बात को उन्होंने नहीं लिखा। And you might be wondering why, okay? Because the Philippian church was something that the Philippian believers were personally known to him. He has seen them. और इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि जो फिलिपियों की जो कलीसिया है, वो जो लोग थे, वहां के लोग प्रेरित पौलुस को आमने सामने देखा था। And he knew that they accepted him as an apostle, and so he did not have to show that authority to them. और वो लोग जो है प्रेरित पौलुस को वो लोग अच्छे से जानते थे, और इसीलिए वो प्रभु यीशु प्रेरितता को प्रेरित पौलुस जो है उन लोगों के सामने बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। But here, as we looked in the background, Apostle Paul had never been to Colossae. He has not seen those people, and so here we see him asserting that authority, that he is an apostle of Christ Jesus.
और यहाँ पर इस बात को हम लोग समझ सकते हैं, इस कलीसिया के लोग प्रेरित पौलुस को कभी आमने सामने नहीं देखा था, इसीलिए वो लोगों को मैं प्रेरित हूं करके वो साबित कर रहे हैं। Now, as you know, a Colossian, if you imagine yourself as a Colossian leader, and when this letter is being read out, the first question will come in our mind or in the minds of those readers are, who made Apostle Paul an apostle? और आप समझ लीजिए कि कोलोसियों का एक बहुत बड़ा अगुवे हैं आप, या प्राचीन हैं आप, तो आपको ऐसा लगेगा ये पत्र लिखने के बाद यदि आपके पास आता है, प्रेरित पौलुस को प्रेरित किसने बनाया? ऐसे सवाल आपके मन में आ सकते हैं। Because we do not find him being in the initial disciples when Jesus Christ was there in the earth. क्योंकि प्रेरित पौलुस के विषय में हम ये समझ सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को व प्रेरितों को चुना था, उस वक्त प्रेरित पौलुस नहीं थे। So how can he tell by himself that he is an apostle? That's a natural question that will arise in their minds. और एक साधारण सवाल जो है हर व्यक्ति का मन में यही उठेगा, व उनके मन में यही उठेगा कि प्रेरित पौलुस को प्रेरित किसने बनाया? That is why in that verse he puts this word, it is not me, it is not my will, it is the will of God. I am an apostle of Jesus Christ by the will of God. और इसीलिए प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं, मैं अपना इच्छा से नहीं, बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार मैं एक प्रेरित हूं करके वो साबित कर रहे हैं। You know, if you look in today's world, I'm not sure if you have recognized, there are so many people, so-called apostles, they call themselves as apostles. और अभी हम लोग हमारे चारों ओर हमारे दुनिया में देखेंगे, बहुत सारे लोग जो अपने आप को प्रेरित का मतलब कहने के लिए व प्रेरित साबित करने के लिए प्रयास करते हैं। How, as believers, how can we differentiate if they are the real apostles or not? और हम जो विश्वासी हैं, हम कैसे जो उन लोगों को परख सकते हैं वो वास्तविक में प्रेरित हैं या नहीं? There are 3 qualifications to be an apostle. और 3 ऐसे उन लोगों का जीवन में जो क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, तब जाकर के उस व्यक्ति को हम अपोस्टल कह सकते हैं, प्रेरित कह सकते हैं। To be an apostle, as per the term of the New Testament, the first qualification is they must have seen the resurrected Christ Jesus. और जो पहली बात हम लोग जो है एक प्रेरित होने के लिए, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को देखा हो, व पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को देखा हो, तब जाकर के वो व्यक्ति एक प्रेरित के रूप में कहलाएगा। The second qualification is that they need to be chosen or to be sent out by God. और दूसरा जो क्वालिफिकेशंस को हम लोग देख सकते हैं, वो ये है, दूसरा योग्यता को देख सकते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया हो। That is what the word apostle means, to be sent out, or in a simpler word, to be a missionary, to be sent out. और प्रेरित का मतलब ये है भेजा गया व्यक्ति, जो मिशनरी व सेवक के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। And the third qualification is they must be able to perform miracles or signs to prove that the message that they are carrying is real. और तीसरा जो योग्यता को हम लोग देख सकते हैं, वो जो कुछ भी सेवा कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को भी करना है, ताकि इस बात को साबित कर ले कि परमेश्वर के द्वारा वे लोग भेजे गए लोग हैं। So the next time, you come across a person who says he's an apostle, we must not get confused, because we must know who a real apostle is. He must have seen the resurrected Christ. He must be sent by God. And thirdly, he must be able to perform signs and wonders to attest the message that he's carrying. और जो कोई व्यक्ति यहाँ करके मैं प्रेरित हूं या वो प्रेरित है करके यदि कहता है, तो हमें इस बात के लिए हमें कभी भी द्वंद्वित नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वो व्यक्ति आ करके इस काम को कर ले कि वो व्यक्ति यदि भेजा गया हो या फिर परमेश्वर के द्वारा जो है चुना गया हो,
पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को देखा हो और उसके साथ साथ बहुत सारे आश्चर्य कर्म जो है करता हो इस प्रेरितता को साबित करने के लिए, तो उस व्यक्ति को आप प्रेरित करके मान सकते हैं। So in verse 1, we find Apostle Paul introducing himself. He also tells Timothy is along with him. और हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस अपने बारे में जो अपने बारे में बताते हैं और उसके साथ साथ तीमुथियुस को भी यहाँ पर आगाह करते हैं। And some people say that maybe Timothy is the one who was helping him write, but we are not sure about it. और कुछ लोग ऐसे कहते हैं तीमुथी प्रेरित पौलुस को पत्री वगैरह लिखने में मदद करते थे, लेकिन हमें इस बात के लिए कोई गारंटी नहीं है वो कि वो लिख रहे थे या नहीं। And then in verse 2, we find him, addressing or to whom this letter is written. और दूसरा पद में हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है इस पत्री को किसने लिखा है, किसके लिए लिखा है। Yeah, I think this we will continue in our next class. It's almost time. Yeah. So as we're going to conclude, let us remind ourselves that as we're going to start this day, let us have this thing that we as Christians are complete in Christ. We do not need anything additional to add to our salvation or to help us build spiritual maturity. In Christ, we are complete. तो मेरे प्यारों, जैसे कि आज का दिन को हम लोग शुरू करते हैं, तो इस बात को आइए हम लोग समझ लें, मान लें कि प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने के लिए आपको और मुझे और किसी चीजों का आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में हम संपूर्ण हैं। Thank you, brother. Thank you for translating. Thank you so much, brother, for your wonderful message.